تشریف لاتے ہیں علامہ ناصر مدنی۔ ڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سال ہے آج چاچی آ تہاڈی چل چاچی نو شریعام چپیڑا پی گئیاں۔ میں سبھی کو یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف اس مشن کے لیے جاتا ہوں کہ اسلام آگے پھیلے۔ ہمارا مقصد جو ہے صرف دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ خدا کے لیے اگر وہ لڑکیاں جو رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر اگر کوئی بات کرتی تو وہ دین کی کرتی ہیں نا، تو ان کے سر پہ دوپٹہ بھی ہم نے دلایا ہوا ہے۔ حق کو بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتفاق اختلاف چینل میں پھر ایک بار خوش آمدید۔ جیئیں گے تو دلیل کے ساتھ، مریں گے تو دلیل کے ساتھ۔ ناظرین کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اور جو آپ کا ناصر مدنی، جو اس عوام کا ناصر مدنی، اس بے حیا عوام کا ناصر مدنی پڑا کرتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا تھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین میں کہا کرتا ہوں کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اور چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جب چور اور کتی مل جائیں تو چوریاں تو ہوں گی۔ اس بغیرت کی بغیرتی کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کیا خوب کسی نے کہا ہے، وہ ان جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ کوئی بھی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دندے سے بڑھ کے کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ آج اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے دندے سے بڑھ کے اس کا دھرم، اس کا مذہب نہیں ہے۔ ناظرین میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے ایک اور پروگرام میں شرکت کی، جہاں پر سٹیج ڈرامہ بھی تھا، جہاں پر عورتیں بھی بے حیا بےہودہ لباس پہنے تھیں، بے پردہ چہرہ اور سلیولس بازو، بےہودگی اور بے پردگی کی انتہا۔ آج میں اس پروگرام کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور آخر میں علامہ شام صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین یہ وہابیوں کا علامہ ناصر مدنی جو آج علامہ بنا پھرتا ہے، یہ علماء کے بارے میں وہ بکواس کرتا تھا، وہ تذلیل کرتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کو اتنا ذلیل کرتا تھا کہ جب وہ ٹی وی پر جا کر اسلامک ایشوز کو سالو کرتے تھے اور اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تب یہ ان کے بارے میں بکواسیات کیا کرتا تھا۔ جب خود کے کھٹے انگور میٹھے ہونے شروع ہوئے تو تب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا۔ تب پہنچا وہاں پہ جہاں کا خبیث تھا، اور جن نے لالی لوئی انہوں کی کوے گا کوئی۔ جب کوئی بے شرم ہو جائے شرم ہی اتار دے، بے شرمی کی حدیں پار کر دے، تب اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مرے تے مکرے دا کوئی علاج نہیں ہوندا، میں کہتا ہوں مرگے اور بے شرم انسان کا علاج نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد اندازہ خود کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں علامہ ناصر مدنی۔ تے دوجی بار بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سال ہے آج کم چھڈنا کہ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ہائے یہ کم ساڈی امی نو کیوں مار رہے ہیں؟ تہاڈی امی نہیں چاچی آ تہاڈی چل چل چاچی نو شریعام چپیڑا پی گئیاں، چاچی نو شریعام چپیڑا پی گئیاں۔ بول پیاں بابے دے دربار، چڑیاں بول پیاں بابے دے دربار۔ تو دفعہ ہوئے تھوں تم لوگوں کی نا بڑی گندی عادت ہے، پیسے دے دو تو دعائیں دے۔ 2005 سے 2020 تک کی اس کی تبلیغ جو ہے، اس میں ان تمام علماء اکرام جنہوں نے میڈیا پر آ کے اسلام کی فلاح کے لیے کام کیا، اسلام کے ایشوز کے لیے کام کیا، اس پر اس نے یہ 15 سال اتنا بھونکنا شروع کیا اور اتنی ان کی تذلیل کی، اور اس نے کہا کہ وہ درباری ملو 2 ٹکے کے ملو جو ہیں وہ میڈیا پر جاتے ہیں۔ جڑے درباری ملا چنگ ٹکے دے ٹوکرو ملو مینا دانا ملو رکھیا ہے، جڑے ٹی وی تے بیٹھ کے روز آندے دین ایسے سنو دین
ऐसे सुनो मैं कहांगा दरबारी मुल्लो जे ताडे जेली गैरत दीन दी मौजूद है ते फिर टीवी दे लाइव प्रोग्राम च एक दफा फातिमा दा हया बयान करके दस दे। आज जब इसकी खुद की बारी आई तो ये इतना गिर गया कि आज ये स्टेज ड्रामों के प्रोग्राम्स में भी पहुंचना शुरू हो गया, आज ये उन बेहुदा प्रोग्राम में भी पहुंचना शुरू हो गया। पहले ये उलमाए इकराम की तस्लील किया करता था और जो कम अज कम इस तरह के कंजर खानों में नहीं जाते वो उलमाए इकराम जो एक मुहज्जब और सीरियस संजीदा प्रोग्राम में जाते थे और इस्लाम के और दुनियावी मसाइल हल करते थे, उनके बारे में ये भोंकता होता था। जब इसके खुद के अंगूर खट्टे से मीठे होने शुरू हुए, मीडिया ने जो इस पर जुल्म ज्यादती हुई उस पर तरस खाकर इसको बुलाना शुरू किया, तो साथ ही इस्लाम के लिहाज से जो हया बयान करता था वो खत्म हो गई। अपने मफाद के लिए इसने ओल दलाइल गढ़ना शुरू किए। फिर इसने कहा कि मैंने वहां लड़कियों के सर पर दुपट्टा नहीं रखवा दिया। खुदा के लिए अगर वो लड़कियां जो रमजान ट्रांसमिशन में आकर अगर कोई बात करती तो वो दीन की करती है ना, तो उनके सर पे दुपट्टा भी हमने दिलाया हुआ है। नाज़रीन, मैंने पहले ही कहा था कि इसकी औकात नहीं है कि ये कोई लड़की इसकी बात मानकर अपने सर पर दुपट्टा ले। वो तो रमजान के एहतराम में कंजरियां भी और बाजारी औरतें भी एहतरामन सर पर दुपट्टा रख लेती हैं। अब बताएं कि अब इसका दुपट्टा कहां पर है? अब ये जो स्टेज ड्रामे और बेहुदा प्रोग्राम में गया है वहां पर ना लड़कियों ने दुपट्टा लिया बल्कि उल्टा उन्होंने बेहुदा कपड़े भी पहने, बेहुदा लिबास भी पहना और बेहुदा जुगते भी मार रही हैं। फिर इसने कहा कि मैं पहले मुखालफत करता रहा हूं, अब मैं अपने बयान वापस लेता हूं। रमजान में तो इसने ये भी दलील गाड़ दी कि मैं तो इस्लाम की अशात के लिए जाता हूं। नाज़रीन, पहले ये इस्लाम के दलाइल दिया करता था, अब ये उन कंजरों के और उन बाजारी औरतों के दलाइल देता है और उन बेहया लोगों के दलाइल देता है कि आप शादियों पे जाते हैं, वहां पर नहीं बेपर्दा औरतें होती, वहां पर नहीं कंजरियां होती, वहां पर नहीं खुसरे नाचते। कभी शादियों में जब भंगड़े डालते हो लड़कियों के साथ तब तुम्हें याद नहीं होता? जब अपनी मैंने देखा कितनी शादियों में लोग औरतों को लेकर बेपर्दा में हम चाहते हैं निकाह पढ़ाने, हम देखते हैं कि कितनी कितनी बड़ी दाढ़ियों वाले और उनकी औरतें कितने फैशन करके सरेआम शादियों में घूमती हैं। नाज़रीन, एक वक्त था जब ये उलमा की तस्लील के लिए इस्लाम के नाम पर उनको जलील किया करता था। आज ये खुद इस्लाम के दलाइल नहीं देता बल्कि खुद को डिफेंड करने के लिए कंजर और कंजरियों के दलाइल दे रहा है। फिर इसने कहा कि इब्तिसाम, हशाम और खादम रिजवी जैसे भी मीडिया पर जाते हैं उन पर फतवा लगाओ। ये उलमा इकराम जितने टीवी पे आकर बैठे, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर सब टीवी पे बैठते जाते हैं, वो मजाक रात में भी गए, वहां औरतें नहीं थी। ये हर एक के बारे में अपनी जबान खुला करे, एक आपको नजर नहीं आना चाहिए, मगर जो देख ले कि एक को टारगेट करना इसका मतलब है कि आपको एक ही नजर आता है। मैं पूछता हूं कि वो कब ऐसे बेहुदा और बेपर्दा और घटिया प्रोग्राम पे गए? वो तो संजीदा प्रोग्राम पे जाकर और इस्लामिक और दुनियावी जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी तुमने उनकी इतनी तजलील की कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो नाज़रीन, अब खुद देख सकते हैं कि इसके कितने बड़े बड़े यू टर्न हैं और ये अपने मफाद के लिए ये किसी भी हद तक किसी भी गलीज हरकत तक जा सकता है। ये शोहरत के लिए और पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये खुद को डिफेंड करने के लिए कभी तो इस्लाम का सहारा लेता है और कभी कभी इतना भी गिर जाता है ये कंजरों और कंजरियों का और दल्लों का सहारा भी लेता है। नासिर मदनी, हमें ये मसला नहीं कि तुम स्टेज ड्रामों में क्यों जाते हो या तुम इस तरह से शोहरत क्यों हासिल कर रहे हो, इस तरह से पैसा क्यों हासिल कर रहे हो। हमें मसला इस चीज से है कि तुम मिंबरे रसूल की जान छोड़ो और तुम स्टेज ड्रामों पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी इन स्टेज ड्रामों और इन कंजरों जैसी है। नासिर मदनी, तुम नबी पाक के मिंबर और मेहराब की तजलील ना करो, तुम खत्मे नबूवत के खिलाफ अपनी जुबान, अपनी गंदी जुबान के बेलगाम घोड़े ना दौड़ाओ। और अल्लामा हशाम लाई ज़हीर और अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर, मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा था कि ये वो हरकत, वो गलीज हरकतें करेगा, उस हद तक गिरेगा कि आपकी भी बेइज्जती होगी, आपके खानदान की भी बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी आपने इसकी हमायत की। कल आपको और इब्तिसाम साहिब को ये दरबारी मुल्ला और 2 टके का मुल्लू कहने वाला आज खुद स्टेज ड्रामों की जीनत बना हुआ है और इस तरह के बेहुदा प्रोग्राम में जाता है। अभी भी वक्त है
खुदारा आपको अल्लाह का वास्ता है, इस मामले पर सोचिए और अपने मेंबर से और अपने सेंटर से इसको डिफेंड ना करें, इसकी हमायत ना करें। आपका खानदान बहुत बड़ा है, ये उसे छोटा और बेइज्जत कर देगा। इसलिए अल्लामा शाम साहिब और अल्लामा इब्तिसाम साहिब, अगर आप भी इस तरह के बेहुदा और घटिया प्रोग्राम की हमायत करते हैं, फिर तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन मुझे पता है, मैं 100% जानता हूं कि आप कभी भी इस तरह के प्रोग्राम्स की हमायत नहीं करते। इसलिए खुदारा अगर आप इन गलीज प्रोग्रामों की, इन बेहुदा प्रोग्रामों की हिमायत नहीं करते, तो आप इस गलीज इंसान की भी हिमायत करना छोड़ दें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। नाज़रीन, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अल्लामा हशाम और अल्लामा इब्तिसाम तक पहुंचा दें, ताकि उनको असली हकायक का पता चल सके। और ये जो उनका सहारा ले रहा है और ये जो उनकी हमायत हासिल कर रहा है, जो उनके कंधे पे रख के ये बंदूक चला रहा है, उनको अल्लामा हशाम और अल्लामा इब्तिसाम को पता चल जाए कि असली हकायक क्या है, ताकि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सके। अल्लामा साहिब, अल्लामा इब्तिसाम साहिब ये लुमड़ी की तरह चालाक इंसान है। हालांकि मैं आपके मुकातबे फिक्र से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आपका खानदान बहुत शरीफ है, आपके खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं। इस्लाम के लिहाज से, खत्म नबूवत के लिहाज से आपने बड़ा काम किया है। आपके खानदान को पूरी दुनिया जानती है, इसलिए इस जैसे गलीज कीचड़ के अंदर ना पड़े। सारा अपनी इज्जत की और अपने खानदान की रखवाली खुद करें। नाज़रीन, फैसला खुद कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, कादियानियत और इनकी हमायत करने वाले मुर्दाबाद।